फर्दर जो इंटरव्यू में हम अभी तक हेजिटेट हो रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें उस एनवायरनमेंट में इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, हम इतने हेजिटेट हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। या सपोज हमें कोई चीज नहीं आ रही है, हमें इस टाइम ये क्लिक नहीं होता है कि इस अगर मुझे कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करूं। तो इस सारी चीजों का इफेक्ट होता है जो वो हमारी परफॉर्मेंस को लो कर देता है। हम इतने हेजिटेट हो जाते हैं कि हमें जिन क्वेश्चंस के आंसर आ भी रहे होते हैं हम उनको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हमारी जो डिलीवरी स्किल्स है वो बिल्कुल लो हो जाती है। इस सारी ये सब इस वजह से होता है क्योंकि हम फर्स्ट थिंग तो हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होता है हमसे कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमें चलो ये भी पता होता है कि हमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, हमने उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना होता है। ये जो पूरा वेबिनार है ये पूरा इस पे ही बेस है कि आपको वो सारी चीजें बताई जाए, वो सारी चीजें आपको पता हो कि मुझे इन इन चीजों पे वर्क करना है। हम मेरी ये चीज मैं इस चीज में लैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हमारी वहां जाके जब हमारी फिजिकल इंटरेक्शन हो इंटरव्यू से तो हमारी परफॉर्मेंस वीक ना हो। सो ये तो सारी चीजें होंगी, हो गई कि ये इंटरव्यू किस चीज पे बेस है। अब ये तो सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छे रिसोर्स का होना जरूरी है, जहां से आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, जहां से आपको पता चले कि वाकई ये चीजें हैं, इन चीजों पे आप वर्क कर लें तो आपका इंटरव्यू मोर देन इनफ बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। उसी रिसोर्स के लिए आई वुड लाइक टू कॉल सर जो हमारे हैं। तो मैं उनको कॉल करना चाहूंगी कि आप प्लीज इस सेशन को ज्यादा आगे प्रोसीड करें, क्योंकि आई पर्सनली इंटरेक्ट विद सर। उनका एंथुसियाज्म बहुत हाई है, उनकी एक्सपर्टीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इस सेशन को सुनने के बाद आप हेजिटेट नहीं होंगे। आपका एंथुसियाज्म इतना हाई होगा कि आपको पता होगा कि आई हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, मुझे ये चीजें सीखनी है, इन चीजों पे काम करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू hear me? Walaikum assalam. Yes, definitely. I was hearing you, and it was nice to be here with all you guys, with all the young, energetic professionals. It is really fantastic. थैंक यू सर, मैं चाहूंगी कि आप सेशन को आगे प्रोसीड करें। So, should we start? जी जी सर। So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, folks. How are you? I hope you will be fine, and Yes, sir. I, Alhamdulillah, sir. I hope and Walaikum pray Assalam. I hope and pray to be the best of the best for you people by the grace of Allah Ta'ala. May you be blessed in both the worlds, in your professional life as well as academic life in this world hereafter. Uh, I pray for you. Thank you very much for being here and giving me this opportunity to present this very important topic with you and to share some thoughts, some tips, and some insights from the industry. So I hope you will find this session interesting and pertinent to your needs. Something very will be similar. You will be knowing already. Some points will be new to you. Some techniques will be discussed. So stay tuned and inshallah try to learn. We will have different segments in this session. First, I will explain some theory, some content. Then we will proceed to some tips. Then in the end, some sample questions that you may be asked. And then in the end, we will have some question answer session. So this will be the modus operandi here. So I welcome you to this exciting and important session on interview preparation, which is of utmost importance for every professional, be it experienced or the freshers or beginners. But before starting proceedings, I would simply acknowledge and appreciate the efforts of the incredible leaders. They are doing an amazing job, guys. So keep it up and keep doing this, performing this wonderful job. I'm thankful for their wholehearted support in arranging this session and rendering me whatever support I wanted. So let's start today's session, right?
So you must be knowing that interview phase is the very critical phase in every profession's life. And after crafting and making a beautiful CV and attractive resume, uh, the second and the utmost important stage, the real challenge is of interview call. You must be knowing that there is a lot of difference in making a CV, a resume, with peace of mind, with all the time at your hand. You can craft whatever you want. You can make it flashy. You can make it very attractive. But when it comes to the real scenario of an interview, it is a totally different ball game. So this is totally different. So preparing a CV and then appearing in an interview, that is a totally different call. And I am here, inshallah, to share my experience, share my thoughts on this. And on a very lighter note, just to define those two stages: preparing CV, sending it to employers, and then appearing in an interview is just like when you send a CV, you are sending rishta to your prospective employer, to the organization. आप रिश्ता भेज रहे होते हैं. But appearing in an interview is sort of बर दिखा हुआ. यानी आपको बुलाया जाता है, आपको एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है. तो रिश्ता भेजने में और बर दिखावे में आप समझते हैं फ़र्क. तो इम्पोर्टेंस दोनों की है. और जब आपको एक्चुअल चांस मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो हाउ शुड यू कंडक्ट. So this is a thing, and we will be doing some more chat and more discussions in this. So सबसे पहले तो आपको जो इम्पोर्टेंट टिप है, आपने घबराना नहीं. आपने घबराना नहीं. इंटरव्यू है, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू. ये कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है. तो जो एक बहुत नर्व जिटरिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस लोगों को होता है कि क्या होगा अगर अच्छा नहीं हुआ, या हम फेल ना हो जाएं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं. लाइफ है, चलती रहती है. तो आपने घबराना नहीं. दैट इज़ द थिंग. आपने कंपोज रहना है, आपने उसको लेके चलना है और अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है. तो जैसे मनीषा ने भी कहा, प्रिपरेशन इज़ द की. आप 16 साल 18 साल पढ़ाई में लगाते हैं और तैयारी करते हैं, एकेडमिकली एक्सेल करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो फिर एक नया आपको मंजर आपके सामने होता है. तो प्रिपरेशन इज़ द की. जैसे आप अपनी एकेडमिक लाइफ में प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को पूरा साल पढ़ते हैं और फिर अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में और अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं आप, तो इसी तरह जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो पूरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड आपके सामने होता है. आपकी अचीवमेंट्स आपके सामने होती हैं, आपकी एकेडमिक लाइफ आपके पास होती है, आपके पास अचीवमेंट्स आपके सामने होती हैं, आपकी सोशल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास होती हैं. तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम कि आप अपनी उन सारी अचीवमेंट्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें. आप अपना जो वो सारा अपना पोर्टफोलियो है वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के सामने एक अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम में पेश कर सकें. तो दिस इज़ द क्रिटिकल phase, and that demands a lot of detail and lot of preparation. So I am here to share my thoughts and share my experience in providing you some useful tips, very common tips, very easy tips. So I have coined a simple term, APRP. You have to consider these 4 letters while preparing for an interview. CV में आपने किया होगा ये सब कुछ, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपने इन सारी चीज़ों को कैसे कंपोज करके प्रेजेंट करना है, लेट अस डिस्कस. तो APRP, दिस स्टैंड्स, A स्टैंड फॉर योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, एकेडमिक और एजुकेशनल एक्सपीरियंस, whatever accolades, whatever certifications, whatever ranks, whatever grades you have got, you have to present those things. P stands for personal or social achievements or aspect of life. You have to come up with your social aspect in your interview as well, because they just don't want a qualified guy who have higher GPA, higher percentage. They want some living human being as well in their organization. कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो कितना सोशल है, कितना वो एक्टिव है, कितना वो एक ह्यूमन बीइंग है. तो दैट काउंट्स अ लॉट इंटरव्यू में. पर्सनल एस्पेक्ट आपका कि आप पर्सनल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे इंसान हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग हैं, कैसे लीडर हैं, कैसे आप एक इंडिविजुअल हैं. सेकंड इज द पर्सनल या सोशल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ और योर. थर्ड वन इज आर, एंड दिस इज फॉर रिसर्च वर्क और स्पेड वर्क. हम इसको डिस्कस इंशाल्लाह तफसील से करेंगे. और दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट साइड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन
आपको आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी, वो एक इंटरप्शन आ गई थी। एक सेकंड, मैं इसको टोन डिस्टर्ब पे कर दूं। Sorry. The fourth one is post-interview or follow-up phase. These four elements you have to consider yourself while preparing for an interview. एकेडमिक डिटेल्स में आप अपनी जो अचीवमेंट्स होती हैं आपने सीवी में लिखी भी होती हैं, मगर आप सीवी में सब चीज़ें नहीं लिख सकते कि मैं एकेडमिक्स में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या मेरी इंक्लिनेशन थी, क्या मैंने फेस किए, क्या प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारी डिटेल उसमें नहीं होगी. सो यू हैव टू कंपोज all those things in your mind while going for an interview, and then at appropriate time when they ask about you, question होता है describe yourself, तो आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मुख्तसर तौर पे ब्रीफ कर सकते हैं. तो बेसिक, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा काउंट कर रही होती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसी रही है. ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई ग्रेडर हों तो वो आपको रखें. दे नीड सम इंटेलिजेंट, सम हार्ड वर्किंग, सम इंट्यूटिव, सम गुड पर्सन. नो मैटर आपका अगर जीपीए इतना नहीं भी है, परेशान होने की बात नहीं. वही बात मैंने कहा, घबराना नहीं है आपने. तो उसमें आपने अपनी जो अचीवमेंट थी वो किस तरह से पेश करनी है, उसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जो टॉपर्स हैं या जो अच्छे ग्रेड्स वाले हैं उनके लिए तो इनका ग्रेड भी सफिशिएंट होता है उसमें उनको थोड़ा सा बताने के लिए. लेकिन एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज है, वॉट एवर, वो ऐसी एग्जाम्पल्स को लाके उसमें अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकता है. बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हाई फाई टाइकून्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, उनकी मिसाल कि अगर वो अपनी एकेडमिक्स में नहीं थे, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, बट इन द रियल लाइफ दे एक्सेल्ड. तो दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन कैश ऑन. एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अपने इस्तेमाल कीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए और अपनी जो मेन स्ट्रेंथ्स थी उनको बताइए कि आई वाज गुड एट मैथमेटिक्स, आई वाज गुड एट फिजिक्स, आई वाज इंटरेस्टेड इन मोर इन दैट सब्जेक्ट एंड आई टुक पार्ट इन दोस प्रोजेक्ट्स एंड आई वाज डूइंग सो एंड सो. तो ये एकेडमिक एस्पेक्ट हो गया. कोई सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास, कोई आपने अटेंड किए थे सेमिनार से, कोई भी, वो आप ब्रीफली उस मुख्तसर वक्त में जो आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स में, उसमें आप ब्रीफ करें. सेकंड वन इज पर्सनल अचीवमेंट्स. इसमें आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को, सोशली जो आप इन्वॉल्व रहें, कोई इस वेलफेयर वर्क किया है कि किसी नोबल कॉज में इन्वॉल्व रहें, कोई भी आपने ऐसा काम अच्छा किया है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में करते रहें, उसको आप वहाँ पे टाइम, जिस मौके पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कब आपने करना है, तो वो आपने अपने प्रिपेयर रखना है अपने आप को, सिनेरियो उसको, एग्जाम्पल्स को आपने तैयार करके जाना है कि अगर फला बात होती है तो मैंने अपनी फला पर्सनल एक्सपीरियंस को ब्रीफली शेयर करना है. बोस्ट अबाउट नहीं करना, कोई शेखी नहीं भगानी, मगर मैंने अपनी पर्सनल जो अचीवमेंट्स हैं या जो मेरा पर्सनल पहलू है, क्योंकि एकेडमिक्स में वो सामने नहीं आता, ये अलग से आपको बताना पड़ता है, तो वो हमने प्रेजेंट करना है. थर्ड वन, वेरी क्रिटिकल वन, रिसर्च वर्क. जिस कंपनी को आप फोकस कर रहे हैं फिलहाल, जब शुरू आप फोकस की बजाय बहुत जिस जहाँ पे आपको अपना इम्कान लगता है अपना सीवी भेजते हैं, अपना रेज्यूमे भेजते हैं, तो लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आती है, और डेफिनेटली आप उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मैं सिर्फ इसी कंपनी को भेजूंगा, फला को भेजूंगा. To start with, you have to send your resume, your CV to every possible avenue. But once you get a call from any company, then research work starts. आपने उसकी कंपनी के बारे में आपने रिसर्च करनी है, थोड़ा सा स्पेड वर्क करना है, थोड़ा सा डिग आउट करना है. उसकी वेबसाइट पे जाइए, कंपनी की हिस्ट्री पढ़िए, कंपनी का इंसेप्शन कब हुआ, कब यह इस्टेब्लिश हुई, उनका प्रोसेस क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी हायरार्की क्या है, उनके कौन लोग हैं, की पोजीशंस के क्या है, कल्चर क्या है वहाँ का, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या करते रही है वो कंपनी, कैसे ग्रो की है, पहले क्या थी, फिर क्या हुई, और अब वो क्या है, वो नाम उसका चेंज हुआ तो किस साल हुआ, मर्जर हुआ तो कब हुआ. ब्रीफ हिस्ट्री आप उसकी थोड़ी सी करें. उसका कॉन्टैक्ट अस पेज आपने याद नहीं करना, वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट अस और उसकी डिटेल और हिस्ट्री और सारा, मगर मोटी मोटी बातें आप जॉट डाउन करें ताकि उस कंपनी की हिस्ट्री आपके सामने हो, पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस आपके सामने हो, और दैट मैटर्स अ लॉट. जब आप उस कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं और उस कंपनी ही के रेफरेंस देके आप उनको बताते हैं कि हाँ जी, यस यू डिड दैट अमेजिंग जॉब, यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट स्टेज to this stage, or you have future plans like this, you have current ongoing projects like this, that really creates a very great impression. Believe me, अगर उस कंपनी के उस इंटरव्यू पैनल को आपने इस तरह से थोड़ा सा एक इम्प्रेस कर लिया, तो इंशाल्लाह द ऑड्स आर इन योर फेवर कि इस कंपनी के बारे में अगर आप इतना जानते हैं तो व्हाई डोंट दे वांट टू हैव यू ऑन बोर्ड फॉर देम.
तो ये रिसर्च वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी आप जो मैंने बताई मोटी मोटी बातें, उसको रिसर्च कीजिए, लिखिए कहीं पे, उसको मेमोराइज कीजिए। की पर्सन्स कौन है इंटरव्यू में, कौन हो सकता है, उसके नाम, उनकी डेजिग्नेशन। तो नाम से जब इंटरेक्शन होता है, कन्वर्जेशन होती है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो ये रिसर्च वर्क से मुतालिक। एंड फोर्थ वन, पोस्ट इंटरव्यू या फॉलो अप फेज। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंटरव्यू दे दिया और आप दे रहे होते हैं इंटरव्यू सीवीज, तो आपके ये चीज़ बैक बर्नर पे चली जाता ही हो सकती है कि हमने इंटरव्यू दिया था, उसका क्या हुआ। कीप फॉलो अप विद देम आफ्टर सूटेबल फ्रिक्वेंसी। एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, वॉट एवर बी द ड्यूरेशन, आप उसके बाद उनसे फॉलो अप कीजिए, एचआर वाले से, या जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने आपको कॉल किया था, कोई थर्ड पार्टी बीच में थी, उनसे पूछ लीजिए। बट फॉलो अप भी ज़रूरी है, ताकि यू कीप योर सेल्फ इन रडार, कि आप जो है वो आपने उनको भूला नहीं, आप उनको आपको याद है कि आपने इंटरव्यू दिया था एंड यू हैव फॉलोड अप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है वो इनसे रब्ता रखें। ये नहीं कि बार बार, मगर एक दफ़ा दो मरतबा फॉलोअप जरूर कीजिए, ताकि अगर कोई डेवलपमेंट है तो आपकी नज़र में आ जाए, आपको पता चल जाए कि क्या डेवलपमेंट है या केस क्लोज हो चुका है, तो आप फोकस करें दूसरी तरफ। अदरवाइज यू रिमेन इन होप, यू रिमेन इन टच, ये शायद अभी होगा शायद, लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि यस या नो, आर या पार, तो आप फिर कंफर्ट में, पीस में आ जाते हैं। आप यू लुक विद पीस ऑफ माइंड, आप दूसरे एवेन्यूज को देख रहे होते हैं। तो ये जो फॉलोअप स्पेस फेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप उसको फोकस कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये APRP कुछ इंशाल्लाह पसंद आया होगा। इसको आप ज़रूर फॉलो करें अपनी प्रिपरेशन में। इंटरव्यू के ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मगर ये 4 ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके एक अच्छी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको देखिए, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, लेकिन ये कि कुछ अगर नई टिप्स हैं तो दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। अब हम थोड़ी सी जनरल टिप्स की बात कर लेंगे कि जनरल टिप्स क्या हैं, पता तो होती हैं, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं तो आप ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। इन पर्सनल लाइफ आप फ्लैशी हैं, आप एक्स्ट्रावेगेंट हैं, आप यू हैव टू बी ड्रेस इन अप्रोप्रिएट अटायर एज पर दी कॉर्पोरेट कोड। तो ऐसा ड्रेस अपना पहनना है या अटायर लेना है कि जो कॉर्पोरेट एथिक्स के मुताबिक हो। जीन्स वगैरह हैं, कैजुअल वेयर है, उसको अवॉइड कीजिए। फॉर्मल ड्रेसिंग हो, कोई ब्रांडेड सूट जरूरी नहीं है ब्रांडेड सूट हो, मगर फॉर्मल ड्रेसिंग हो और साफ सुथरी हो, क्रीज प्रेस्ड आयरन हो। एक कोई अच्छा आप परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा कोई जो आपकी दूसरे गैजेट्स हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे कड़ा पहनते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो लड़के नॉर्मली बॉयज करते हैं, अगर उस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बी वेरी प्रोफेशनल, प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ गुड डिसेंट मैनर, और लीव ड्रेस ऑन अल्लाह ताला। ड्रेसेस का कलर भी होता है, आप इसको एक अलग पूरी सेपरेट फील्ड है ड्रेस कोड्स की, कि किस तरह के आप ड्रेसेस कलर्स को चूज, कभी खवाती जेंट्स भी उसमें अपने लिहाज से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड फ्लैशी कलर्स ना हो, लेकिन डिसेंट कॉर्पोरेट लुक वाले कलर्स का इंतखाब कीजिए, तो इंशाल्लाह दैट विल बी गुड। शूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी में। सम देयर माइट बी अ सेइंग कि सबसे पहले आपके शूज़ से आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। तो ज़रूरी नहीं कि शूज़ आपके बहुत ही ज़्यादा कोई हाँ ब्रांडेड हों, कोई बहुत ही हों, अच्छे हों, प्रेजेंटेबल हों, साफ हों, नीट हों, क्लीन हों, पॉलिश्ड हों, दैट्स इनफ। सॉक्स का भी आपने सिलेक्शन उसी तरह करना है। दैट इज टोटली अटायर की पूरी एटिकेट है, अटायर का पूरा एक वो है डेकोरम है कि बेल्ट भी मैचिंग की हो, तो शूज़ और बेल्ट मैचिंग के होने चाहिए, सॉक्स को मैचिंग आप पैंट से कर सकते हैं। इस तरह से आप, ये पूरा ड्रेस कोड है, पूरी फील्ड है, टेक्नोलॉजी मतलब पूरी वो इसकी वो कंटेंट है, आप स्टडी कर सकते हैं। ड्रेस के हवाले से हो गया। देन जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आपने टाइम से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे अब ट्रैफिक का जो निज़ाम है और रोड कंडीशंस हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा पहले वहाँ जगह पहुँचिए। ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को जहन में रखते हुए, रोड जैम्स को, रोड ब्लॉकेजेस को, कंस्ट्रक्शन वर्क को, वेदर कंडीशंस को, एनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को, टायर पंक्चर हो गया, कुछ और मसला हो गया खुदा ना खास्ता, तो वेल इन एडवांस निकलिए और तकरीबन आधा घंटा 20-25 मिनट पहले पहुँचें, ताकि यू हैव टू गेट एक्लिमेटाइज विद द सराउंडिंग्स। आदमी कहीं नई जगह जाता है तो अपने आप को वहाँ से एडजस्ट करने में, एक्लिमेटाइज करने में, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। और जब आप एक एनवायरनमेंट से
कंफर्टेबल हो जाते हैं तो यू कैन डिलीवर योर बेस्ट। लेकिन अगर आप पहुंचे ही नहीं है बिल्कुल एंड टाइम पे और भागम भाग आप पहुंच के, तो आप जो चीज़ हुई, जैसे मनीषा ने कहा, आपको आता भी है, आप नहीं बता पाएंगे, घबराहट में आदमी के जहन से निकल जाता है। तो पहले पहुंचिए, कंपोज हो जाइए, आराम से वहाँ अपना सीट लीजिए वहाँ पे वेटिंग रूम में जहाँ भी आपको बिठाया जाए, और देन टेक अ क्लोजर एंड फ्रेश लुक ऑन योर ओवरऑल बॉडी। वॉशरूम जाइए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, कॉम कीजिए, अपना कपड़ों को, अपने सब चीज़ों को देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें वो नहीं पता होती, हो सकता है आपके बाल खराब हो गए हों, आपकी कहीं शर्ट पे कोई धब्बा लग गया हो, कुछ कुछ भी हो सकता है। आप एक दफ़ा अपने आप को मिरर में देखिए कि हाउ आर यू लुकिंग, एंड देन वेट कीजिए, दुआ कीजिए, जिक्र कीजिए और तैयारी को अपने वो कीजिए। कल्चरल सेंसिटिविटी का ख्याल रखिए। हम जहाँ जिस जगह जिस सोशो इकोनॉमिक माहौल में, जिस हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस कॉर्पोरेट कल्चर में हम हैं, वहाँ की इसका डाइवर्सिफिकेशन का एहतराम कीजिए। रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आपके अपने बिलीव्स हैं, आपके अपने कोड्स हैं, एथिक्स हैं, मगर जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का भी ख्याल कीजिए और उस लिहाज से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर और टेक अ सिप ऑफ वाटर। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वेटिंग रूम में थोड़ा सा, ताकि आपका अगर गला खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है, आप उसको वेट कर लें। ये चीज़ होती है एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, हला खुश हो जाता है, बात आवाज़ नहीं निकलती, तो अपने आप को फ्रेश कीजिए और पानी पीजिए थोड़ा सा, और अपने आप को रिलैक्स रखिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए, ताकि आप स्ट्रेस अगर है तो निकल रहा है, स्ट्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे इंशाल्लाह आपको, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप रिलैक्स रहेंगे, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। देन हम जब इंटरव्यू के रूम में दाखिल होते हैं तो कॉल के इंतज़ार में होते हैं, एक एक कैंडिडेट गया, दूसरा वो आया तो दूसरा गया, जब आपकी बारी आए तो टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स बिफोर एंटरिंग इंटरव्यू रूम। आपको कंपोज कीजिए, रिलैक्स कीजिए और हर फिक्र को, परेशानी को कमरे से बाहर छोड़ दीजिए। एंटर द रूम विद कॉन्फिडेंस एंड पॉइज। आपकी जो हम अभी डिस्कस थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को भी करेंगे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है। आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir, very clear. Yes, राइट sir. राइट 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 राइट। तो जब आप एंटर हो कमरे में, तो कॉन्फिडेंटली अपना आपने अपनी सीट की तरफ जाना है। आपकी जो वॉकिंग जो वो है पैसेज, वो बहुत आपने ग्रेसफुली, कंपोज के साथ, विदाउट एनी प्रेशर, रिलैक्स अंदाज में उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपने जाके अपनी सीट पे पहुंचना है, और सीट पे पहुंच के आपने इजाज़त लेनी है। यू हैव टू आस्क परमिशन फॉर गेटिंग सीटेड, या वो आपको खुद कह देंगे प्लीज हैव अ सीट। सो यू हैव टू ऑफर थैंक्स, ग्रेटिट्यूड व्हेन योर परमिशन इज ग्रांटेड टू बी सीटेड, एंड देन यू हैव टू सिट ऑन द सीट। आपका पॉस्चर, ये सब प्रैक्टिस आपने करनी है। आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए, यू हाउ टू सीट, हाउ टू मेक योर बॉडी पॉस्चर बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, टिल्टेड ना हो। आदमी थोड़ा प्रेशर में होता है और वो देख रहा होता है कि सामने इतने सारे लोग बैठे हुए, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, तो वो डर के अगर अगर कोई है तो इसको बिल्कुल वही ना, आपने घबराना नहीं, आपने बिल्कुल कंपोज तरीके से, प्रैक्टिस आपने इंशाल्लाह की भी होगी किस तरह से बॉडी पॉस्चर रखना है, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, हेड, अपना हेड स्ट्रेट रखना है, स्माइल थोड़ी सी देनी है, और पहुंच के आपने उनको ग्रीट करें, सलाम करें, ऐसी आवाज़ में कि ना बहुत तेज़ हो ना बहुत लो हो, उनके तक पहुंच जाए। और हैंड शेक्स को आज के सिनेरियो में जो है कोविड का, आपने अवॉइड करना है, अनलेस मास्क का भी इस्तेमाल करना है, अनलेस अगर वो आपसे खुद हैंड शेक करना चाहें, अदरवाइज आपने पहल नहीं करनी, क्योंकि फिर वो एथिक्स और उसके खिलाफ समझा जाता है। तो वो एक बंदा हेजिटेंट है और आप उससे हैंड शेक ऑफर कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिए। देन आपने उसको बैठना है, और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट उन्होंने करना है, आपने ग्रीट करके, सलाम करके अपनी सीट लेनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने आई कांटेक्ट अच्छा रखना है उनसे। आई कांटेक्ट अच्छा रखने का मतलब ये कि आपने हर टीम मेंबर को आपने थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट देना है। ये नहीं कि एंटर होते ही आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया और घूरते हुए उनको आप अपनी सीट पे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने अपना टाइम देना है, अपने पैसेज को, आप सीट तक पहुंचे, इजाज़त मिल गई, बैठ गए। देन जब इंटरव्यू शुरू होगा, आपने यू हैव टू वेयर अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, यू हैव टू रिलैक्स, कोई इसमें टेंशन नहीं। जब इंटरव्यू शुरू हो तो फिर आपने जो है ना अपने सवाल और जवाब जो पूछे हैं वो देने। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, जब आप उनसे बात कर रहे हैं या वो आपसे बात कर रहे हैं, तो जो आपसे बात कर रहा है उसको तो आपने देखना है, लेकिन जनरल डिस्कशन में जब आप जवाब दे रहे हैं कोई जनरल, तो आपने सबको थोड़ी थोड़ी अटेंशन स्पैन देना है। एक ये टेंडेंसी भी होती है इंजीनियर्स में, फ्रेश ग्रेजुएट्स में, या ऑफिसर्स में, या जो कि वो जब वो प्रेजेंटेशन में या ग्रुप इसमें होते हैं, तो किसी को एक को वो
आउट कर लेते हैं, आए सवाल कर रहे होते हैं या उसी को देख के अपनी बात कर रहे होते हैं, तो बाकी मेंबर्स थोड़ा सा इसको हो सकता है वो फील करें कि ये मुझे नहीं देख रहे। हर के आप अनइंटेंशनल नहीं होंगे, मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभार आपने भी नोट किया होगा कि वो कोई आपका टीम मेंबर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो एक ही को देख के बात कर रहा है, और जबकि ग्रुप के लोग बैठे हैं, तो आपने सबको और फ्यू सेकेंड 3 सेकेंड जो है वो करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी ने आपसे सवाल किया है तो आप उसकी फिर उसको 1 to 1 आई कांटेक्ट में रखें, तो नो डाउट नो नो है नो अगर आप बात कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप पूरे अगर पैनल ज़्यादा लोग हैं तो उनको आप सबको थोड़ा-थोड़ा अपना अटेंशन टाइम दें, ताकि वो हर कोई इन्वॉल्व रहे, आपसे एंगेज रहे। आई कांटेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप किस तरह से जो है ना उनको अपने पास अपने साथ कनेक्टेड रखते हैं। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, किसी को भी नहीं देख रहे, ये भी बड़ा आपका गलत इंप्रेशन देता है। ये हम देखेंगे कि पोस्चर्स में कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि आप आई कांटेक्ट रखें उनके साथ, आप अपनी हैंड मूवमेंट को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को किस तरह इस्तेमाल करें। कम्युनिकेशन स्किल से पूरा टॉपिक है। आई हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह गुड ट्रेनिंग सेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप वो कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टडी करें कि हाउ टू इंटरेक्ट। ये 4-5 जो स्टेप्स होते हैं, पहले समझना, लिसन करना, उसको समझना, डिकोड करना, देन उसका रिप्लाई करना और देन फीडबैक देना। ये 5 स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के। तो आपने सवाल को समझना है, इंटरप्ट नहीं करना, आपने उनसे समझना है कि उनका मकसद क्या है सवाल का। हर चंद की आपको अंदाजा हो जाए कि क्या पूछने लगे, मगर आपने लेट हिम कंप्लीट द क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। इसका बहुत मज़ेदार एक वो है कि हियर टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। और हियर से भी हियर उन्हें सुनने के बाद लिसन, लिसन टू अंडरस्टैंड एंड डोंट लिसन टू जस्ट रिप्लाई, कि बस जवाब देने के लिए नहीं सुनना कि बस एक सवाल आया उसका जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहले आप समझें आपसे क्या सवाल किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है। हो सकता है आखिर में वो कोई और बात कर दे आपसे, आप समझ लें आधा सवाल सुन के कि वो ये पूछ रहा है, तो वो उसको कंप्लीट करने दीजिए और फिर उसके बाद उसका जवाब दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बी ऑनेस्ट। आपको ये, आप क्योंकि अगर ज़्यादातर फ्रेशर्स हैं तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सब कुछ पता होगा आपको। पोस्ट ना कीजिए कि हाँ जी मैं ये जानता हूँ, गलत जवाब दीजिए, बस गलत मैंने, ये वायवा नहीं है एक यूनिवर्सिटी का कि आप तुक्का चला लें, वहाँ पे भी नहीं चलता तुक्का। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो इसको आप रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली बता दें कि इस एरिया में मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ या नॉलेज नहीं है, आई कैन लर्न, आई कैन लर्न दिस थिंग लेटर ऑन। तो जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ये दिस विल गिव यू अ गुड इंप्रेशन ऑन दी इंटरव्यू पैनल कि जी बंदा ऑनेस्ट है, वो बोस्ट नहीं कर रहा, अपने आप को पोज नहीं कर रहा, जो पता है। और क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और ज़्यादातर फ्रेशर्स के लिए, तो आप उसके लिए आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने एक अचीवमेंट की है, स्टडी की है, डिग्री ली है, तो यू आर मोर देन एलिजिबल, यू आर कॉम्पिटेंट। लेकिन जिस फील्ड का आपको नहीं पता, आप उस पर उनको बोस्ट ना करें कि मुझे पता है मैं जवाब देता हूँ, गलत भी दे दिया तो कोई बात नहीं, जवाब देना है। जवाब देना ज़रूरी नहीं है, आप उनको अपना ऑनेस्टी दिखाइए, अपनी कंपोजर दिखाइए, क्योंकि हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ यू रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिक्रूटर, एचआर मैनेजर्स, इंटरव्यू वाले ये देख रहे होते हैं आपसे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हर चीज़ का जवाब जरूरी नहीं है देना, वो आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच देखते हैं। इफ योर अप्रोच इज ऑनेस्ट, इफ योर अप्रोच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन दिस विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू। तो इसको आप डोंट हेजिटेट कि अगर नहीं पता, प्लेनली पोलाइटली एडमिट कीजिए कि फिलहाल मुझे इसका नहीं पता, इंशाल्लाह बट आई कैन लर्न। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी जेस्चर्स आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप अपने आप को अगर देखिए, आप जो कम्युनिकेशन के लीडर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी आप क्लिप्स देखिए कि हाउ दे यूज़ देयर बॉडी जेस्चर्स। आप चूंकि बैठे हुए होंगे उस वक्त, तो आप स्टेज वाला सिनेरियो नहीं होगा, मगर बैठने के साथ साथ भी आप कितनी चीज़ों को आप अपनी बॉडी जेस्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मेक्स ए ग्रेट इम्पैक्ट। हम जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में था तो हम एवेल्यूशन एट द एंड ऑफ ईयर करते थे इंजीनियर्स की। उनका 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन वो देते थे। तो उस प्रेजेंटेशन में अगर वो ये बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको गैजेट्स मिले हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो फुल यूटिलाइज कर रहा है अपनी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, तो दैट मेक्स ए गुड इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू द पर्सन हु सिंपली जो बस आया, उसने अपना डिलीवर किया, बॉडी पॉस्चर्स उसके कोई इतने खास नहीं थे, उसने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी, प्लेनली बस अपना ब्रीफ किया और चला गया। तो दोनों में फ़र्क होता है। थोड़ा सा आपको ये सीखना होगा कम्युनिकेशन स्किल्स को, यूजिंग बॉडी जेस्चर्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट रियली मैटर्स। ठीक है, तो ये हो गया।
बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 100% हर दफ़ा आंसर देना नहीं होता, हमारा जो एटीट्यूड है वो काउंट करता है। आपको एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जनरल कन्वेंशनल क्वेश्चंस हो गए, फ्रेशर्स के क्वेश्चंस हो गए, इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, ये हम इस पर आएंगे। बिहेवियरल क्वेश्चंस का बहुत बड़ा एक रोल होता है और वो खास तौर पे पूछे जाते हैं। और देन द ऑड बॉल क्वेश्चन। ऑड बॉल क्वेश्चन क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो आपसे ऐसी चीज़ पूछी कि आप बौखला से गए। तो ये खास एक मकसद होता है इसका, ये हम डिस्कस करेंगे। आपने उस इन सिचुएशंस में किस तरह कंडक्ट करना है। एक होते हैं आपके जनरल क्वेश्चंस, वो आपके बारे में होंगे, वो आपसे भी हम स्लाइड भी चल रहे होंगे, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें जो है ना वो हो सकते हैं सवालात आपसे। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन मिस्टेक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है। इसको कैंडिडेट इंटरोगेशन से अगर वो रिलेट करने के, ये इंटरोगेशन है और 1 वे कम्युनिकेशन है खाली, तो वो ये गलत फहमी है। इंटरव्यू इज नॉट एन इंटरोगेशन, नॉट ए 1 वे कम्युनिकेशन। क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि पूछने चाहिए। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि बस आपसे ही पूछा जाएगा और आप ही जवाब देंगे, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आस्क क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। वो हम डिस्कस करेंगे क्या गुड क्वेश्चन हैं। तो ये इंटरोगेशन से इसको रिलेट ना कीजिए, ये 2 वे कम्युनिकेशन है और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है इंटरव्यूअर पर, इंटरव्यू पैनल पर, कि अगर आप भी कुछ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन करते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड बी प्रिपेयर्ड टू आस्क सम क्वेश्चन। आप पहले से बना के रखिए, जो आपने स्टडी किया होगा आप उनके साथ ये शेयर कीजिए और उनसे पूछिए। ये हम डिस्कस करेंगे क्या सवाल आप कर सकते हैं और उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं उस पर आपने जो है ना वो किस तरह रिएक्ट करना है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। वेटिंग, इंटरव्यू दे दिया, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि आपने उसको इंटरव्यू दे के आप खामोश हो गए कि जी कॉल तो आई नहीं, आपने इंटरव्यू के बाद उसको ये ना समझे कि बस खुद ही कॉल आएगी, आपने भी फॉलो अप करना है। तो ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। देन जनरल क्वेश्चंस पर अगर हम आते हैं तो जनरल क्वेश्चंस आपसे होते हैं कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए, हाउ डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, बताएं थोड़ा सा बैकग्राउंड, वालिदैन के बारे में, कहाँ से हैं, कितने बहन भाई हैं आप। फिर अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के बारे में बताएं, थोड़ा सा अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बताएं और अपने एस्पिरेशन थोड़ी सी बता दें कि आपकी क्या एक एस्पिरेशन हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ, ये बड़ा बड़ा जनरल क्वेश्चन होता है, तो इसको आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं कि आपने क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है और किस सवाल का कैसे जवाब देना। तो जब आप तैयार होते हैं तो आप अच्छा वहाँ सवाल जवाब देते हैं। अगर आप तैयार नहीं होते तो आप फिर वहाँ कुछ सहन में आता है, कुछ रह जाता है, फिर आप बाद में सोचते हैं यार ये भी मैं बता देता, तो उसको थोड़ा तैयार कीजिए। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो ये बड़ा एक ट्रैप होता है कि हम वहाँ अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जो है ना बताने में थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं, या हम गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम उसको, ये अभी बाद में कीजिएगा 4 स्टार, ये अभी हम उसको बाद में करेंगे। तो वीकनेस आपने अगर बतानी है तो उसमें ये ख्याल रखिए कि आपने जो आपकी वाकई जो थोड़ी वीकनेस है उसको इस तरह प्रेजेंट करें, ये नहीं कि वो है। आप ये बताइए कि मैं मल्टीटास्किंग का मैं आदी हूँ, मल्टीटास्किंग इज़ माय वीकनेस, के मैं फिर फोकस नहीं कर पाता। तो मल्टीटास्किंग इज़ नॉट दैट मच अ वीकनेस। आप ये बताइए कि मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं मल्टीटास्किंग पे काम कर रहा हूँ, कि किस तरह से उसको मैं कंट्रोल करूँ और बेहतर करूँ, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो उसको इस तरह से आप ब्रीफ करें ताकि उसको भी एक ये रियलाइजेशन हो कि आप एक चीज़ बता भी रहे हैं और उस पर आप वर्क भी कर रहे हैं। किसी भी एरिया में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना समझते हैं तो आप उसको अपनी इम्प्रूवमेंट की डिज़ायर के साथ बताइए कि मैं इस पर इम्प्रूवमेंट की मुझे अंदाज़ा है और मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी ओवरकम कर लूँगा। स्ट्रेंथ्स में आप स्ट्रेंथ आपकी पता होती हैं, आपको क्या स्ट्रेंथ है आपकी, जिसमें आपने एकेडमिक पीरियड में आपने काम किया होता है, सोशल लाइफ में किया होता है। आप ब्रीफली बताइए, बोस्ट ना कीजिए, शेखी ना मारिए, बस उसको अच्छे तरीके से हम्बली एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। मनीषा, आई थिंक हम हाँ, हम ये करते हैं, इसको सवाल जवाब को आखिर में रख लेंगे। ये प्लीज़, मैंने अभी देखा है आपका, तो इसको हम आखिर में रख लेते हैं, बस थोड़ा सा ये कुछ डिस्कस करके देन आई विल बी फ्री फॉर क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं उस पर फोकस कर सकूंगा, ठीक है ना। हम उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, मैंने क्वेश्चन अभी देखे, ठीक है जी।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक होती है, हम इंटरव्यू के एंड पे क्वेश्चंस नहीं आस्क करते या बीच में हम क्वेश्चंस नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, प्रिपेयर कीजिए अपने आपको कि हमने फला फला सवाल मैंने पूछने हैं, उनके बारे में वो क्या सवाल है हम देखेंगे आगे। और फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस, दैट इज ए बिग पिटफॉल, कि अगर कैंडिडेट से वन वे इंटरोगेशन समझ को भुगता के आगे इंटरव्यू, तो वो फिर थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब आप टू वे कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको भी आपकी एक लीडरशिप, आपका एक डिज़ायर, एक पैशन नज़र आता है, आपके अंदर उनको स्पार्क नज़र आता है। और ये आता है कि बंदे ने कुछ पूछा या किसी ने पूछा, जो प्रोफेशनल आया था उसने हमसे भी सवाल जवाब किए, हमसे पूछा, और ही इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ एनर्जेटिक, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, यूनिक। जो अभी किसी ने सवाल पूछा कि आप यूनिक कैसे हैं, तो इस तरह से आप यूनिक बन सकते हैं कि आप आस्क इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ था। नाउ जो मैंने आपको APRP टेक्निक बताई थी, तो उसमें आप उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, कंपनी के बारे में जो रिसर्च की थी वो उनको आप बता सकते हैं कि मैंने आपकी प्रोजेक्ट फलाना वेबसाइट पे देखा था, आपका ये बड़ा अच्छी अचीवमेंट थी, इसका ये रोल रहा, ये सिग्निफिकेंस है। तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ेगा जब आप रिसर्च करके करें। नाउ वी कम टू द स्टार रिव्यू रिस्पॉन्स टेक्निक, STAR। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसमें आप अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं। S stands for situation, T for task, A for action and R for result। ये एक स्टार टेक्निक है जो आपको इनेबल करती है उनके सवालात को अपनी मर्जी से जवाब देने की। उन्होंने अगर आपसे सवाल पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अब दिस इज ए सिचुएशन, आप इस पे स्टार अप्लाई कीजिए। सिचुएशन क्या है, उन्होंने आपसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड, आपकी हॉबी, अब दिस इज योर बॉल आपके कोर्ट में, आपने किस तरह से उनको जो है ना वो इफेक्टिवली और थोड़े से चंद मिनट के स्पैन में बताना है। नाउ दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। तो अब टास्क क्या होगा कि आप अपना रोल उसमें बताएं कि आपने इस सिचुएशन में क्या किया। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। या हम रहते हैं सवाल कि उन्होंने कोई आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूछा कि आप अपनी कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, या आप अपने किसी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किसी किसी ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड। तो आपने उसमें अपना रोल बताया उस सिचुएशन के मुताबिक कि मैं उसमें टीम लीडर था, या मैं उसमें एक मेंबर था, या मैं उसमें एक पार्टिसिपेंट था, या मैं कंट्रीब्यूटर था, व्हाटएवर आप अपने हाईलाइट कीजिए कंट्रीब्यूशन को। देन उस पोजीशन पर रहते हुए आपने क्या एक्शन लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, उस सिचुएशन में आपने एक्शंस क्या लिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी, या उस कंट्रीब्यूशन में आपने क्या पार्ट प्ले किया। देन रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला उस प्रोजेक्ट का। नो मैटर कि वो कोई फेल हो गया या उसमें सक्सेस नहीं हुई या कुछ भी हुआ, आपने अपना एफर्ट पुट इन किया, आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो ये स्टार टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि जिसके जरिए आप हर क्वेश्चन को अपना बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। कि आप सिचुएशन को एनालाइज करें, अपना उसमें रोल बताइए, उसको टास्क बताइए, उसके एक्शन बताइए एंड देन रिजल्ट बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक टेक्निक है, और इसको आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह यू कैन हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये एक छोटा सा हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। और देन जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें लिखा था व्हाट मेक्स यू यूनिक, तो यूनिक के हवाले से अभी बात हुई। आप जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे दैट विल मेक यू यूनिक। आप अगर रिवायती तरीके से जाएंगे और सिर्फ सवाल के जवाब दे के आ जाएंगे तो यू विल बी एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट। अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे, अगर आप जो है उसको अपने रिसर्च के साथ जाएंगे, आप तैयार होकर जाएंगे, प्रैक्टिस करनी होगी आपने, घर पे कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे कीजिए, यूनिवर्सिटी में कीजिए, ग्रुप के साथ कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल एक्सेल इंशाल्लाह, ताकि आप सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लें। आपने मॉक एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल्स की भी होंगी, तो आपको इसमें जो है वो आसानी होगी, आपके लिए सिचुएशन नई नहीं होगी, आपको आसानी से इसको टैकल करना आएगा इंशाल्लाह। दैट इज द थिंग। तो जनरल क्वेश्चन हो गए। ऑड बॉल क्वेश्चन, अच्छा ऑड बॉल क्वेश्चन ये होता है कि आप जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीज आपसे पूछ ली, आपने तैयारी की थी, आपने सब कुछ किया था, लेकिन ये सवाल तो सवाल सिलेबस में नहीं था जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, सर ये तो कोर्स के बाहर का सवाल है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमें आता ही नहीं। तो दैट इज ऑड बॉल क्वेश्चन। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आप इस पे घबराएं नहीं, आपने कंपोज रह के और जो बेस्ट सोल्यूशन आप दे सकते हैं आप वो दीजिए, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय या जो इंटरव्यू का पैनल है वो आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच देखना चाहता है।
कि आप किस तरह से करते हैं। आप पैनिक हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप कहीं और निकल जाते हैं, या आप क्या करते हैं, जस्ट यू जस्ट रिमेन साइलेंट। तो आपने उसको टैक्टफुली हैंडल करना है, आपने प्रॉपर तरीके से उसको घबराना नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि सर, बीइंग फ्रेशर, बीइंग एन फ्रेश इंजीनियर, बीइंग ए फ्रेश प्रोफेशनल, व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दैट, या मैं ये समझता हूँ, या मेरी राय में, जो कि गलत भी हो सकती है, मेरी नज़र में ये चीज़ ऐसी है और ये ऐसी होनी चाहिए, या इसका ये जवाब, दैट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन, ताकि वो उसको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि बंदा ऑनेस्ट है, या जो भी कैंडिडेट है ऑनेस्ट है, और वो अपने आप को बहुत लामा नहीं समझता, और ही रिमेन कंपोज्ड, वो घबराया नहीं, और उसने अच्छी तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए ताकि आप उसको जो है ना वो टैक्टफुली हैंडल करें। एक आदि इस तरह का क्वेश्चन शायद होता हो कि आपको चेक करने के लिए, जज करने के लिए कि हाउ यू रिस्पॉन्ड, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और बाकी इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे रन ऑफ द मिल काइंड होते हैं, या आप अपने शेड्यूलिंग, अगर आप इसमें अच्छे हैं, इसमें अपने आप को प्लान करने में, शेड्यूलिंग में, आप यू आर ए बता सकते हैं। एकेडमिक्स में भी था, ये मेरा स्टडी टाइम था। हेलो जी, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो Yes, sir. Now it's clear. जी, आवाज आ रही है? ओके ओके इरफान, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू। मैं इसमें कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आया था, सही। अच्छा जी, तो ये फ्रेश इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ये कि आपसे जो पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज, बिगेस्ट वीकेंड स्ट्रेंथ हमने बात कर ली, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर डूइंग अ गुड जॉब, आर यू अ टीम प्लेयर, इन सब की आपने तैयारी करनी है। और अपनी एक्सपर्टीज के साथ अपने आप को एज ए टीम प्लेयर भी आपने इंट्रोड्यूस कराना है कि आप टीम प्लेयर हैं। अपनी हॉबीज़ का भी बता सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मैं हॉकी खेलता रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ। तो उसमें इंडिविजुअल टैलेंट के साथ साथ टीम वर्क की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर आपको कहते हैं कि आप 5 साल में कहाँ देखते हैं, तो आप अपने वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप सोचते क्या हैं, आप फॉरेन स्विच कर जाएंगे या आप रुक के काम करेंगे। तो आप उनको बता सकते हैं कि जहाँ मुझे अच्छी ग्रूमिंग और डेवलपिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आई कैन वर्क ओवर देयर फॉर लॉन्गर पीरियड्स। मेरी इसमें एस्पिरेशंस ये हैं, मैं उसको एक करियर बनाना चाहता हूँ फला फील्ड में। तो इस तरह से आप उसको टैग कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी मंजूर, और देखिए अगर वो जो आपके डिटेल वाले सवाल अगर रखने हैं, तो अगर वो स्लाइड दिखा दें, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने मजीद क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है ना, इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ये थोड़ा से डिटेल होते हैं, और जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हों, तो वहाँ पे ज़्यादा उसमें ये एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारे आप इसको देख सकते हैं और इसमें हम वी कैन डिस्कस। So now should we start the question answer sessions? Yes, sir. If you find it convenient, we can start. Yes, this. sure. That's all from me. और बातें तो बहुत हैं। Thank you very much for your time. और ये आप कमेंट बॉक्स मैंने खोल लिया है, और अगर वैसे भी बता दें तो क्योंकि इसमें 2 तरफ चल रहे हैं मामले, इसमें तो पार्टिसिपेंट्स कम हैं, ठीक है। तो आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस प्लीज। So can we ask a question other than chat? ये राहत फहीम कह रहे हैं, आई वांट टू सी द इंजीनियरिंग क्वेश्चन स्लाइड, तो इनसे शेयर कर लीजिएगा, यहीं पे दिखा दें या वैसे कर लें। तो इंशाल्लाह मेरी ईमेल आईडी भी आप लोग ले सकते हैं इनसे। तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर क्वेरीज टू मी, जो क्वेश्चंस के हवाले से है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, कोई टिप्स हैं, तो मंजूर और टीम इनक्रेडिबल मेरा ईमेल शेयर कर लीजिए। तो ये जो इनके कोई डिटेल क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम वेयर यू हियर अबाउट अस, लिंक्डइन का, यस लिंक्डइन भी है, मुझे एक कॉन्टैक्ट ने रेफर किया था, और that is an amazing platform. The Incredible Leaders is an impressive platform. You guys are doing a great job, and Thank you, sir. Thank you so kudos much. for your enthusiasm, your professionalism, and your dedication and your support.
Sir, would if you possible point if you give authentical explanation in interview if you are asked. इसका याकूब अली बताइएगा इसका क्या कहना चाहते हैं आप वैसे वॉइस में बता दीजिए. Please unmute your mic and ask the question. जी सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वुड इट बी प्लस पॉइंट कि हम उन्हें कोई डिटेल आंसर दें या बस उनको एज इट एज ही बस एक पॉइंट में ही जवाब दे दें, यानी शॉर्ट आंसर हो या लेंथी हो डिटेल, ये मैं पूछना चाहता हूँ. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एनालाइज करें सिचुएशन को. इंटरव्यू टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उनके पास और कैंडिडेट्स भी होते हैं. दैट मेक्स यू अ बोरिंग कैंडिडेट अगर आप ज़्यादा तफसील में जाएं. तो यू आर द बेस्ट जज कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं. अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो लंबी डिटेल है तो आप उनको शुरू में बता सकते हैं कि सर ये काफ़ी डिटेल्ड सवाल है, तो मैं उसको ब्रीफ करके आपको बताता हूँ. तो आप अगर वो कहते हैं नहीं आप बताइए डिटेल में, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर डिटेल्ड रिप्लाई. और जारी बात है टाइम शॉर्ट होता है, तो दिस इज द स्किल कि आप मुख्तसर वक्त में एक आध मिनट में 2 मिनट में उस सवाल के मुतालिक आप क्या बता सकते हैं. तो यू आर द बेटर जज एट देन एंड देयर. तो आप उनको पूछ सकते हैं कि सर मे आई ब्रीफ इन डिटेल. अगर वो कहें यस प्लीज, तो आप उनको बता दीजिए. हो सकता है वो एक ही सवाल आपका पूरे इंटरव्यू पे भारी हो या पूरे इंटरव्यू में एक सवाल से आपको वो जज कर लें, या फिर आप उनसे पूछ लेंगे वो आपको बता सकते हैं कि हाँ नहीं आप मुख्तसर बता दीजिए. तो दैट चॉइस इज योर्स कि वो क्या चाहते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. होप इट इज सफिशिएंट. Excuse me, sir. I have a question. एक सेकंड, ये कमाल अहमद ने पूछा व्हाट इज द लैंग्वेज वी यूज. जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, यू डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम. आप जिसमें कन्वीनियंट है. देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अगर पाकिस्तान में हैं तो देयर इज नो हार्म कि आप बीच में उर्दू बोल दें. अच्छी बात है, एक ही लैंग्वेज आप रखें. मगर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो डोंट ऑप्ट फॉर इंग्लिश. आप अपनी जो बहुत बेहतरीन चीज़ पेश कर सकते हैं उर्दू में, आप उसको उर्दू में रखिए. क्योंकि आप वहाँ थोड़ी सी इंग्लिश बोल भी दें, लेकिन अगर आपका वो फोर्टे नहीं है तो बाद में आप ये चीज़ सामने आए तो बेहतर है कि आप अपने आप को एज इट इज़ प्रेजेंट करें. देयर इज नो हार्म. इसको ये बहुत बड़ा बैरियर होता है मेंटल कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम इंग्लिश ही बोलनी है. नो, आप या तो बहुत अच्छी तरह से सीखें और प्रैक्टिस करें, नो हार्म, दैट्स ए गुड थिंग. बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं. हाउ टू बी फ्लुएंट इन आंसरिंग, ये किरण पूछ रही हैं. प्रैक्टिस 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 मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, सवाल जवाब की प्रैक्टिस कीजिए. फ्लुएंट होने के लिए आप अपना स्टडी कीजिए. स्टडी आपने की होगी, आपके पास नॉलेज होगी तो यू विल बी फ्लुएंट. अदरवाइज यू विल बी स्टैटरिंग. आप उनको अटक रहे होंगे. जब आपको पता होगा तो आपके फ्लो से, आपकी बात से उनको अंदाजा होगा. अच्छा, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. ये अच्छा सवाल है. देखिए ये इसमें स्लाइड या उसमें मैंने रखा था. ये बेसिकली अगर ये आपसे सवाल करते हैं, फ्रेशर से करते हैं, तो इसमें एक थोड़ा सा एक क्यू आपके लिए ये होता है कि वो आपसे जो है ना वो दे आर इंटरेस्टेड इन यू. अदरवाइज फ्रेशर्स पे जो मेरी नॉलेज है, दे आर कंपनीज हैव स्टैंडर्ड पैकेजेस. वो आपसे उसमें इतना वो नहीं करता. सैलरी एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल में आता है, रोल प्ले. लेकिन इंडिविजुअल जब फ्रेशर आपको अप्लाई कर रहा है तो दे हैव सर्टेन स्किल्स. लेकिन अगर वो आपसे सवाल करता है तो यू कैन एक मार्केट कंपेटिटिव सैलरी आप उनको बता सकते हैं. बट ये जरूर बताइए कि आई एम नॉट रिजिड अबाउट इट, कि वो समझें कि जी नहीं बस ये साहब तो इससे ऊपर इससे कम पे आएंगे ही नहीं. सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर पूछें तो बता दें. लेकिन नॉर्मली मैंने जैसे कहा फ्रेशर्स की एक स्टैंडर्ड उनके लेवल एक होता है कि पैकेज. अच्छा, व्हाट अबाउट सेशन अटेंडेंस. ये किससे पूछा है शहजाद आपने? सर और एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू रिस्पोंड व्हाई वी हायर्ड यू. आपको हायर क्यों करी. यस, ये भी अच्छा सवाल है. बहुत गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. और ये इसमें शामिल था व्हाई शुड वी हायर यू. ये मेरे इसमें डिटेल्ड अपनी जो मेरे थी कंटेंट उसमें शामिल था. लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये मंजूर ने भी बताया था वाकई कि हम सबको शामिल इसमें नहीं कर सकते प्रेजेंटेशन में. व्हाई शुड वी हायर यू. अब ये एक सवाल है, आपको पहले से पता है कि इस तरह का सवाल आ सकता है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले कीजिए. नंबर 1 इस स्ट्रेंथ्स, दीज स्ट्रेंथ्स को आप उनके बिजनेस से कनेक्ट कीजिए. समझ रहे हैं मेरी बात. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बिजनेस से कनेक्ट कीजिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और मैं इस स्ट्रेंथ में आपके इन 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 फंक्शंस में, इन डिपार्टमेंट्स में, इन एस्पिरेशंस में, इन प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता हूँ. दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को उनके बिजनेस से कनेक्ट कर दें. होप आई एम सक्सीडिंग इन गिविंग दिस आंसर. Sir, I have a question. Sir, am I audible? यस. और इसमें हाई कांटेक्ट की जैसे बात की, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए और कैसे रखें, जैसे मैंने बताया. अब 2 or 3 सेकेंड्स फॉर ईच. अगर जर्नल आप डिस्कशन कर रहे हैं कि हर एक की नज़र में आप 2-3 सेकंड देखें, सबको थोड़ा थोड़ा सा आप अटेंशन दें. यही कि नहीं कि एक को देखना शुरू कर दिया या किसी को भी नहीं देख रहे, थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट रखें. दिस इज सिमिलर फॉर गिविंग लेक्चर्स. आप किसी ऑडियंस को लेक्चर दे रहे हैं तो आप अपनी
आई स्पैन को मूव करते रहें, एक ही सेगमेंट को फोकस ना करें, एक ही जगह फोकस ना करें, या हवाओं में या कहीं और, या बॉडी आई कांटेक्ट अवॉइड करें, ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा सबको। Sir, am I audible? यस। Sir, is it necessary to mention all the semester projects, or mentioning the FYP in the CV is enough for? देखें, ये केस टू केस वेरी करता है। यू आर द बेटर जज कि आपने कितनी मालूमात अपने उसमें देनी है, कौन सी सिग्निफिकेंट है, कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है, और कितनी देनी है। तो ये तो केस टू केस वेरी करता है कि आपने किस एक्यूरेट को आपने तफसील से बताना है, किसको कम करना है, कौन सी वहाँ प्रेजेंटेबल है, कौन सी नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि केस टू केस। अच्छा, हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ आई हैव गैप ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इफ दे आस्क हाउ टू आंसर। वकार पूछना है ये, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। यू कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत पर्टिनेंट है। और गुड न्यूज़ ये है कि इफ़ यू हैव द पोटेंशियल इवन आफ्टर अ गैप और सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई एंड पीपल विल इंशाल्लाह वेलकम यू। लेकिन आपने जस्टिफिकेशन उसकी देनी है कि क्या गैप था, किस वजह से था, जेन्युइन रीजन होगा डेफिनेटली, और उसको आपने किस तरह से कवर अप किया है। उस दौरान आपने अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहे, इंडस्ट्री से आप कनेक्ट रहे, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस के साथ आप अवेयर रहे, तो ये आपका बहुत काउंट करेगा और इंशाल्लाह इस गैप को आप जस्टिफाई कर सकेंगे। तो लेकिन उस गैप में आपने कुछ भी नहीं किया और अचानक इंटरव्यू देने पहुंच गए, तो वो थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल होगी। लेकिन आप अपने उस गैप को डिफाइन कीजिए कि मैंने कैसे उस गैप को जो है ना वो कवर किया। अच्छा, हाउ टू नो दैट द इंटरव्यू वाज गुड और बैड एंड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये जो मैंने आपको बताया कि एक तो आपको खुद भी अंदाजा हो रहा होगा इंटरव्यू के दौरान कि आपने सवालात के जवाब सेटिस्फैक्टरी दिए, लोगों का बॉडी एक्सप्रेशंस, आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, उनका कंडक्ट देखिए, उनकी वार्मथ देखिए कि वो आपसे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ ए क्यू कि आपकी जवाबात उनको पसंद आए। और अगर उनकी तरफ से इंटरेस्ट शो हो रहा है, वो आपको बताते हैं कि हाँ जी वी हैव टेकन केयर ऑफ योर क्वेश्चंस और इंटरव्यू, तो और देन जो फॉलोअप का फेज मैंने आपसे कहा, तो उससे इंशाल्लाह आपको अंदाजा होगा कि हाउ गुड आर योर चांसेस। लक मैटर्स इन सिलेक्शन और नॉट, बिल्कुल है जनाब। अगर आपकी किस्मत में वो जगह है, आपने प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि आप घर बैठें और एक्सपेक्ट करेंगे जी मेरी लक होगी तो मैं जाऊंगा। आपने अपनी फुल, यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, देन बाकी रेस्ट वो कि आपने कोशिश की, अल्लाह ताला पर अब सारा मामला छोड़ दीजिए। तो लगता तो है कि आपकी किस्मत में अगर है एक रोजी कहीं पे, तो वो आपको कोई नहीं छीन सकता, और अगर नहीं है तो आप उल्टा लटक जाए, आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आपकी अपनी इंपॉर्टेंस जो है, रिक्वायरमेंट कि आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है। जनाब, एनीथिंग एल्स प्लीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि कुछ कंपनीज या कुछ इदारे हमसे जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमसे ये सवाल कर लेते हैं कि डू यू हैव एनी रेफरेंस, तो उस चीज़ को किस तरह से जवाब दें जब हमारे पास कोई भी रेफरेंस ना हो। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये आपने देखा होगा जो पिछले वीक आपने सीवी और रेज्यूमे राइटिंग पे देखा है, एक रेफरेंसेस की एक लाइन आखिर में लिखी जाती है, रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आपका रेफरेंस आपके लिए उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी स्किल और आपकी अपनी ज़ात है। अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं उस इंडस्ट्री के, दूसरी इंडस्ट्री के, आप दे सकते हैं, और क्योंकि उसके लिए वो क्रॉस चेक भी करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका सर्टिफिकेट, आपकी को थोड़ी असेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप उनको प्लेनली बता सकते हैं, और रेफरेंसेस अगर प्रोफेशनल हैं, वो नहीं है, बाकी पर्सनल रेफरेंसेस आप दे सकते हैं किसी भी अपना रिलेटिव का, उनका, कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि रेफरेंसेस अगर आप बैकग्राउंड चेक के लिए हैं या किसके लिए हैं, और उनको आप अपना वो कोई ना कोई रेफरेंस तो मिल जाता है कि मेरे फला अंकल हैं, मेरे फला रिलेटिव हैं। तो बिकॉज रेफरेंसेज आर रिक्वायर्ड कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काउंटर चेक हो जाए, आपका बैकग्राउंड चेक हो जाए, आपके बारे में पता चल रहा है, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है या आपका कोई रिलेटिव है, तो उसमें मिल सकता है आपको रेफरेंस। या आप किसी रिलेटिव का दे दें या किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल का दे दें, और किसी का नहीं है तो आप रिलेटिव का तो दे ही सकते हैं कि फला मेरे अंकल हैं या फला वो हैं, ताकि उनके पास एक सोर्स हो आपके जो आपने व्हाटएवर यू हैव प्रेजेंटेड, ताकि उसको वेरीफाई कर सकें। जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आपने कहा कि ग्रीटिंग्स जो है वो, Sir, my name is Mudassir Rao. I'm doing electrical engineering from Iran Institute of Engineering Technology. Sir, my question is that what's make you unique whenever I am going as a electrical engineer? So how I will define this question, like I have a good communication or our activity, good academic or attitude?
गुड क्वेश्चन, बट ये मैं थोड़ा अभी पहले मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। कि व्हाट मेक्स यू यूनिक? प्रिपरेशन मेक्स यू यूनिक, प्रिपरेशन मेक्स यू यूनिक, यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स मेक यू यूनिक। मैंने वो APRP स्ट्रक्चर बताया, दैट मेक्स यू यूनिक, कि आपने कितनी स्टडी की हुई है, कितनी रिसर्च की हुई है, कितनी नॉलेज आपके पास उस कंपनी की है जिसके लिए आप बैठे हुए इंटरव्यू के लिए, तो आप और आपकी एम्बिशंस क्या हैं। तो द कंप्लीट पैकेज मेक्स यू यूनिक, कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपने किस तरह से इलेबोरेट करना है, उनकी नीड्स के साथ अपनी स्किल्स को कनेक्ट करना है, उनके रिक्वायरमेट्स के साथ, उनके बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है, ताकि वो आपको वैल्यू फील करें वो आपकी। यू हैव टू मेक देम फील योर वैल्यू एंड योर इंपॉर्टेंस, योर स्किल्स। तो जब आप ये कनेक्शन मेक कर लेंगे तो वो आपका एक उनसे कनेक्शन हो जाएगा कि हाँ जी फना साहब की ये स्किल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे आप हैं, तो डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, E&I डिपार्टमेंट होता है, उनके मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, और मोटर्स बेतहाशा आपके PLC सिस्टम्स हैं, आपके स्विच गियर्स हैं। आप बता सकते हैं कि मैं जी फला फला मैंने स्टडी की हुई है, फला स्टैंडर्ड से मुझे पता है, या मैंने फला जगह इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। इंटर्नशिप आप लोग कर रहे होते हैं तो उस कंपनी में आप इंटर्नशिप जहां आपने की है वहां भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वहां चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप अपनी स्किल्स को उनके रिक्वायरमेंट के साथ, बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। सर ये मेरा एक और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑड बॉल क्वेश्चन जो होते हैं सर। जी जी सर ये अक्सर इंटरव्यूज में जो होते हैं, इंटरव्यूअर हमसे एक नहीं, जो जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक ऑड बॉल क्वेश्चन कर लेंगे, मुसलसल 2-3 कर लेते हैं, तो सर उसमें हम बार बार तो उनको बात नहीं कर सकते कि हम जो है ये हमारे नॉलेज में नहीं है या ये इसका हम जवाब नहीं दे सकते, वो बैड इफेक्ट नहीं देगा? ना ना ना, मैंने आपको क्या बताया था, ऑड बॉल क्वेश्चन का मकसद ये होता है वो आपका एटीट्यूड या बिहेवियर देख रहे हैं। आपने जो अपनी समझ के मुताबिक है, आप जारी बात है हर बार में ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। मैंने आपको ये बताया था कि आप बताइए कि आई एम ए बिगनर, आई एम ए बिगनर, तो मेरी नज़र में या मेरी राय में इसका ये जवाब हो सकता है, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन आई कैन लर्न। तो जब आप इस तरह से बात करें, कोई ना कोई जवाब तो आपके जहन में आएगा उसका, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मगर जब आप इस बिगिनिंग के साथ उनको बताएंगे, रिमेनिंग हम्बल, बाय रिमेनिंग मॉडेस्ट, कि जी मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय में या मेरी नॉलेज के मुताबिक इसका ये जवाब है या ये इस तरह हो सकता है। तो आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी करेक्ट, बट in my humble opinion, this is the way to tackle. This is the way to. This is the solution to your question. This is the answer to your question. तो जब आप इस तरह करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, लेकिन जब आप वो अपने आप को कवर कर चुके होंगे शुरू में कि मैं जिस अभी स्टेज पे हूँ, तो आई मे नॉट बी नोइंग ऑल द थिंग्स, मैं लेकिन आप उसको जवाब भी देंगे ना, तो ये दैट इज द थिंग। ये भी आप बताएंगे ना कि आप कोई ना कोई जवाब तो आप देंगे, सारी बात है। आप हेलो सर। जी प्लीज। हेलो सर। सर आप अभी बोल रहे थे कि जैसे आप अपने स्किल्स को टारगेट करें कंपनी के बिजनेस से, लिंक करें। जी सर, उसके लिए हमें वो कौन सी इनिशियल इंफॉर्मेशन, इनिशियल स्टेज पे हमें वो इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में तो रिक्वायर होगी कि वो क्या कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से उनकी मतलब गोल्स हैं, जैसे कि हम उनके बिजनेस से टारगेट करें अपने स्किल सेट को। सर वो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास, हम कैसे उस कंपनी को सर्च करें या उसके लिए प्रिपेयर करें, कुछ चीजें हों जैसे हमें ये पता हो कि अगर मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे इस कंपनी के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। ग्रेट क्वेश्चन। और ये मैंने जैसे आपको शुरू में रिसर्च स्पेड वर्क में बताया था, तो कंपनी की वेबसाइट इज द बेस्ट थिंग। उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट पे आपको पूरा कच्चा चट्टा, अगर अच्छी कंपनी है तो उसका सारा आपको सामने आ जाएगा कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके हायरार्की क्या है, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कौन लोग हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये तो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था। तो जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और यू कैन ग्लीन, यू कैन एक्सट्रैक्ट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। तो ये जितनी बातें आपने की उसमें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, गूगल कीजिए, उनके रिव्यूज देखिए, उनके प्रोजेक्ट्स आप देखिए, उनके लिंक्डइन पेज पे जाइए, वहां से आपको सारी मालूमात मिलेंगी कि हायरार्की क्या है, उनके फ्यूचर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। व्हेन आई गिव एन इंटरव्यू तो उस कंपनी के मैंने टेक्नोलॉजी भी थोड़ी समझी,
और उनके बारे में कि ये क्या करते हैं, उन्होंने फला ये नाम था, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये नाम हो गया, ये मर्जर हो गया कंपनी का, उनका ये बिजनेस है, वो इतने का प्लांट लगा रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। तो ये ऑल यू कैन गेट। हम तो इस दौर में, आप लोग तो यू आर वेरी लकी पीपल कि जो इंटरनेट मौजूद है, वेबसाइट पे जाइए और ये सारी मालूमात आपको वहां मिलेंगी और यू जस्ट हैव टू ग्लीन योर रिक्वायर्ड। आपको वो मैंने कहा था ना, कॉन्टेक्ट अस का पेज याद नहीं करना, मगर उसके बारे में मोटी मोटी मालूमात आप जॉट डाउन कीजिए, अपने डायरी में लिखिए, कहीं लिखिए, उसकी एक स्लाइड बना लीजिए, कोई वर्ड फाइल बना लीजिए और उसको थोड़ा सा याद कीजिए। दैट इज द मेन थिंग। सारी बात जो आप करेंगे, किस टेक्नोलॉजी है उनकी, क्या उनके प्रोजेक्ट्स थे, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, तो उनके लिंक्डइन पेज पे जाइए, उनके वेबसाइट पे जाइए, तो यू कैन गेट ऑल। नहीं तो जिसने आपको इंटरव्यू दिया उससे आप कोई उनसे पूछ सकते हैं कि जी अगर मैंने कुछ करना है, कोई कॉन्टैक्ट आपके या आपकी मारे में कंपनी के, तो मैं किस तरह आपका करूँ। तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इंशाल्लाह यू कैन गेट all your questions from their website, from their LinkedIn pages, from their the profiles. Yes sir. Sir, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वकार अहमद ने पूछा है, if they ask you willing to relocate in the future, so how do we answer this question? Yes. Sir, आप इसका ये बहुत अच्छा आंसर सवाल भी है और ये मेरे उसमें कंटेंट में शामिल था, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा सवाल है, ये रिलोकेट के सवाल के इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, यस और नो। तो अगर आप रिलोकेट कर सकते हैं, फ्रेश इंजीनियर हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, व्हाटएवर, तो आप विलिंगली बता दीजिए कि हाँ यस आई कैन रिलोकेट एंड आई कैन डू जॉब वेयर एवर आई कैन बी स्टेशन। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या किसी वजह से मजबूरी है आपकी, तो देयर इज ए टैक्टफुल वे टू आंसर दिस क्वेश्चन कि एट प्रेजेंट मेरी फैमिली कमिटमेंट्स या मेरी कोई जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस या जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, फॉर दीज आई कैन फॉर अ ईयर और सो आई मे नॉट बी एबल टू रिलोकेट। आई कैन वर्क from this certain location, from my home city, from whatever, but after some time when these problems will be resolved, I am open to relocate. तो इसको टैक्टफुली आप इस तरह दे सकते हैं कि प्लेनली मना भी ना करें, अपनी उनको आप रीजंस भी दे दें और इंशाल्लाह उसको वो एक्नॉलेज करेंगे और फिर आप उसको एक बता सकते हैं कि फॉर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और फॉर सो एंड सो टाइम ये मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएं, तो आई विल बी फ्लेक्सिबल देन, but at the moment I may not be able to do, but whatever I can do it from this location I can do it. तो इस तरह से उसको आप डील कर सकते हैं। Yes sir, there is another question है, वो है कि if we don't have any references, then what is the second thing that drives the required attention? मैंने आपको भी इसका जवाब दिया था कि अगर रेफरेंसेस आपके टेक्निकल या प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप किसी रिलेटिव का जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसका मकसद बेसिकली आपका बैकग्राउंड चेक होता है ज़्यादातर, कि जो क्रेडेंशियल्स आप बता रहे हैं, जो आपने किया, सो बैकग्राउंड चेक करना है। अदरवाइज आपकी अपनी जो एल्मा मेटर होता है, यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है, दैट इज ऑल्सो रेफरेंस, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट। तो ऐसा नहीं है, इंसान का कोई ना कोई रिलेटिव होता है, कोई ना कोई जानने वाला होता है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री में ना हो मगर कोई ना कोई रिलेटिव्स में होता है, फ्रेंड्स में होता है। जो आपने मैंने इंजीनियरिंग की या इंस्टीट्यूट की बात की, जिस भी इंस्टीट्यूशन से उसने पढ़ा है उसका, उनके प्रोफेसर्स का रेफरेंस होता है, तो यू कैन ऑलवेज गिव समथिंग। Yes sir. Sir, एक और है कि how to react to rejection in the interview. Very important thing. Or this is a blessing in disguise. This is a blessing in disguise. Okay, you are not supposed to just go in first interview and come out with flying colors और आपको जॉब मिल गई। ये every rejection is a learning. Every rejection is a learning. और ये तो पहले ही आप अपने जहन में रखिए कि बीइंग ए फ्रेशर और इवन एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आप दिस इज नॉट गारंटीड बजाहिर कि आप जाएंगे और पहले इंटरव्यू में कामयाब होकर आ गए, लेकिन आपको जो करना है वो क्या है कि उससे सीखना है कि इसमें क्या बात हुई। एक चीज ऐसी है कि आप जो रिजेक्शन हुई वो आपके स्किल्स की वजह से नहीं हुई, आपके एकेडमिक उसकी वजह से नहीं हुई, उनकी रिक्वायरमेंट से आप मैच नहीं कर रहे थे। तो आप अगर उस रिक्वायरमेंट, उस फील्ड में रहना चाहते हैं, उस शॉर्टकमिंग को पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई वरी की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं, आपने दूसरी जगह एक्सप्लोर करनी है, वहाँ की लिहाज से अपनी स्ट्रेंथ जहाँ मैच करती है वहाँ पे अप्लाई कीजिए, मगर उससे लर्न कीजिए रिजेक्शन हुआ किस वजह से है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर सके। तो अगर वो चीज़ें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग से ताल्लुक रखती हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रखती हैं, उसको ओवरकम कीजिए। और अगर उनका बिजनेस नीड ही नहीं है और आप भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन लर्न कीजिए उससे। What did you like or dislike about your previous job or why you want to join us? तो जवाब नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। देखें, जवाब ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव, आपने न्यूट्रल लेना है। न्यूट्रल लेना है कि मैंने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से किया,
इवन अगर आपका किसी वजह से कोई डिफरेंस हुआ था, किसी भी वजह से नेगेटिव, आपने उस कंपनी को वहाँ पे ना उस मैनेजर्स को ना किसी मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करना, वरना क्या होता है वो तो हक बजानिब होंगे इस बात को समझने में कि आज ये आप पुरानी कंपनी के बारे में कर रहे हैं, हम हायर करेंगे तो आप हमारे बारे में भी ये बात करेंगे। तो आपको कंडक्ट इस तरह करना है, डिप्लोमेटिकली आपको इसको हैंडल करना है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कोई आपने नई अपॉर्चुनिटी थी, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, आप कुछ अपना काम कुछ करना चाहते थे, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट दैट जॉब। और आपको ज्वाइन करने का मकसद ये कि आपने अपने पैशन में देखा कि मेरी ये कंपनी यहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ, या मेरी एक्सपर्टीज या स्किल्स इस्तेमाल हो सकती हैं, और उनके बारे में आपने रिसर्च की हुई होगी। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट योर स्किल्स विद देयर। तो इस तरह से आप उसको जवाब दें, मगर नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो। पॉजिटिव तो फिर भी चलें, ठीक है, आप उनकी तारीफ करें, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव कभी भी ना रखें। यस। अच्छा सर, कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक इंटरव्यू पैनल में किसी एंड से एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, हम बंदा उसका रिप्लाई कर ही रहा होता है कि दूसरे एंड से जो है वो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? उसका तरीका ये है कि आप जिसने पहले सवाल किया आप उसको जवाब देते देते उन्हें सवाल करते हो, आप उनको हम्बली पॉजिटिव पोलाइटली रिक्वेस्ट करें, सर आई जस्ट फिनिश आंसर फॉर दिस गाय फॉर सो एंड सो पर्सन एंड देन आई कम टू योर क्वेश्चन। इस तरह करके आप उनका मुख्तसर जवाब देके दूसरी तरफ आ जाए। हाँ, इन केस अगर वो बंदा जिसने बीच में सवाल किया वो सीनियर है और जिसने पहले पूछा था वो जूनियर है, तो आप सीनियर को फिर पहले अटेंशन दें ताकि वो उसका सवाल हो, क्योंकि बेसिकली ही इज द हेड या ही इज द सीनियर वन पर्सन। तो आप पहले फिर उसको दे दें, फिर देना उनको जवाब दे दें, हो सकता है उनके जवाब में उनका जवाब क्लियर हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम वर्क इफ अकर, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है वकार, हम कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन है, इनका वी कैन कनेक्ट लेटर। सर एक सवाल ये हो सकता है कि मतलब अगर हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि यार आप तो एक जॉब से दूसरी जॉब पे आ रहे हो, उनके साथ आप लॉयल नहीं हो, तो हम कैसे यकीन कर लें कि आप जो है हमारे साथ लॉयल हो, हमारी जॉब नहीं तैयब, ऐसा नहीं है। देखिए जिंदगी चलती रहती है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, ये तो मतलब रीजन कोई कहता भी है ये तो उससे पूछ सकते हैं कि सर आप पहले काम उनसे आप ना पूछें, मगर ये होता है वो खुद भी तो कहीं काम करते होंगे पहले, तो कंपनी के भी ऊपर कोई लाजमी नहीं है कि वो उन्हीं को लेके चलते रहे। कंपनी भी तो लोगों को मूव करती है, नए लोग हायर करती है, और नए लोग भी फ्यूचर उसके लिए नहीं जाएंगे तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। आप बता सकते हैं कि सर देयर इज अ पोजीशन, देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू get stuck in an organization, you have you don't see any further prospects for your development, for your growth, that's why you need to move, this is an important phase। अगर आप एक ही कुएं में रहेंगे, जैसे मुहावरा है कुएं का मेंढक, तो आप बाकी एवेन्यूज को अपने कैसे एनहांस करेंगे। और जो नई कंपनी में आ रहे हैं अगर वो आपसे ये कहता है कि जब आप वहां पे लॉयल नहीं रहे तो उनसे पूछिए, उनको बल्कि बताइए, पूछिए तो नहीं कि सर I am bringing with me a lot of experience of other organizations which I can contribute in your organization, and if the culture and the environment of your organization is conducive, then I can stay for long. It depends upon you। लोग कंपनीज को नहीं छोड़ते, लोग एम्प्लॉयज जो है अपने बैड बॉसेस को छोड़ते हैं। तो अगर आपका कल्चर अच्छा है तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, मैं तो बल्कि एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ या एक मैं फर्दर चीजें लेके आ रहा हूँ, तो ये तो आई कैन कंट्रीब्यूट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप आई होप कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर ऐसा नहीं होगा कि बंदे छोड़ के जा रहे हो, आप उन्हीं को बैकफुट पे कर सकते हैं। यस प्लीज सर एक क्वेश्चन जो है वो ग्रीटिंग एंट्रेंस से ही कर रहे हैं या फिर पहुंच के सीट पे बैठ के फिर ग्रीटिंग करनी चाहिए? नहीं, हाँ नहीं पहुंच के देखें, वो मैंने इसमें शुरू में लिखा था ना, जब आप एंटर हो कमरे में उसी वक्त से लोगों को देखना ना शुरू कर दें ना, वो तो जब एंटर हो कि आप अपनी सीट पे पहुंचते हैं, सीट पे पहुंच के वहाँ आप सलाम कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू पीपल, वो आपको सीट का कहें या आप पूछें, वो जारी बात है डेफिनेटली वो आपको ऑफर करते हैं प्लीज हैव अ सीट, या वो कुछ भी नहीं कहते रहो, जस्ट आप उनसे मे आई सिट प्लीज, आप पूछ के परमिशन मिले थैंक यू फिर बैठ जाए, और देन फिर आप जो है ना उनसे जो सवाल वो फिर वो जारी बात है दे विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। आप जाके एंटर होकर जब सीट तक पहुंच जाएं फिर आप उनको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, वो आपके वालेकुम सलाम, प्लीज हैव अ सीट, वरना सलाम करके अगर वो वालेकुम सलाम कहते हैं और फिर अगर वो नहीं कहते तो आप कहें मे आई सिट प्लीज, तो वो आपसे फिर आप, और अगर कुछ भी नहीं होता यू कैन जस्ट सिंपली गेट सीटेड एंड देन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। अगर एंटर हो के बिल्कुल डेफिनेटली नहीं, वहां से आप कहते हुए आ रहे, नो, आप एंटर हों, ग्रेसफुली चल के जाएं, अपनी जगह बैठें, पोस्चर रखें और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जब हम इंटरव्यू में जब इंटरव्यू रूम में सर हम
एंटर होते हैं, तो वी शुड नॉक द डोर और say may I come in sir, or we should enter straightforwardly without any permission? No, it is better to knock. It is better to knock and then ask permission. That आपके ethics के हवाले से अच्छा point होता है. You can knock and then you open the door and may I come in please. That is the thing. Yes, this is the thing to do. और सर एक और सर जी आसिफ. सर जब हम इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी न्यू एनवायरनमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट जो मतलब 5 मिनट्स होते हैं सर, वो जो है ना वो हमारे लिए फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उनको कैसे मतलब हैंडल किया जाए जो पहले मतलब 5 से 7 मिनट होते. मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, प्रिपरेशन इज द की. प्रिपरेशन इज द की. आप घर पे अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो सिनेरियो बनाएं. ड्राइंग रूम में बैठ गए, लाउंज में बैठ गए, सब लोग बैठे हुए हैं, आपने एंटर हुए. प्रैक्टिस इज द की. आपने उस तरह से कैसे चल के जाना है, और ये आप यू रियली लर्न अ लॉट. आप उस वक्त आपको प्रैक्टिकल जिटर्स आएंगे, प्रैक्टिकल आपको वो आएंगी कि अरे ये मैंने कैसे कह दिया, ये मैंने ये वर्ड ऐसे बोल दिया, ये मैं इस तरह चल के नहीं आया. प्रैक्टिस इज द की. आप उसको रिहर्सल करें, मॉक ड्रिल्स करें. उस तरह से आप अपने आप को जो है ना घर में, अपने यूनिवर्सिटी में, कहीं पे अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ उस तरह की एक सिटिंग बनाएं और उस सिनेरियो क्रिएट करें. जैसे क्रिकेट में होता है, मैच सिनेरियो बनाते हैं ना, वो तो मैच सिनेरियो बनाएं और उसको करें, तो फिर आपको एक अनईजी फील नहीं होगा. ठीक है कि नया एनवायरनमेंट होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आधा घंटा पहले वहाँ पहुंचें ताकि आप उस जगह से, उस एम्बियंस से अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकें. इंटरव्यू रूम में तो सारी बात आप आधा घंटा पहले नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस जगह पहुंच के आप उस फीलिंग से, उस एनवायरनमेंट से, उस ऑफिस से थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, कूल डाउन, सेटल डाउन हो जाएंगे, और आपने प्रैक्टिस की भी होगी. तो और आपने इसका भी अंदाजा किया होगा कि आपने आई कांटेक्ट कैसे रखना है. आपने इनको हाँ, वॉइस का मैंने कहा, वॉइस होती है, शिवर करती है, आपकी आवाज लरज रही होती है, आपको अंदाजा नहीं होता. पहली दफा आप इसकी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इंशाल्लाह. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. जी कमाल. सर जो इंटरव्यू पैनल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो सर उसका आंसर कितनी लेंथ का होना चाहिए, कितने सेकंड या कितने मिनट हम उनको डिफाइन करें, लेंथ ऑफ द आंसर कितनी होनी चाहिए? देखिए कमाल, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था ना, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. क्वेश्चन अगर आपसे कह रहे हैं ब्रीफ योरसेल्फ, व्हाट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इस पे आप 1-2 मिनट ले सकते हैं. 2 मिनट बहुत होते हैं 2 मिनट भी. तो आप इसकी तैयारी जब करके जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं 1 मिनट में कितनी बातें कर सकता हूँ. ये मेरा सवाल है, ये 1 मिनट में पूरा हो गया था, ये 2 मिनट, ये बहुत होते हैं 1 या 2 मिनट भी. तो उसमें आप देखें, टेक्निकल क्वेश्चन है तो उसकी जो आप मोटी मोटी डिटेल्स बता सकते हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन की मोटी मोटी डिटेल, चाहे उसमें 1 मिनट लगे, चाहे उसमें 2 मिनट लगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस पे, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पे. एक जनरल क्वेश्चन है आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में, आप 1 आध मिनट में बता दीजिए उसको. मेरी फैमिली ये बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स ये हैं, मेरे इतने बहन भाई हैं, मैं इतने नंबर पे हूँ, मेरे ये हॉबीज हैं, मेरी एकेडमिक्स हैं, दैट्स ऑल. ये 1 आध मिनट में, 1.5 मिनट में होता है. टेक्निकल क्वेश्चन है तो उसमें आपको डिपेंड करता है, अगर उसमें डिटेल इन्वॉल्व है तो आप उसको थोड़ी सी डिटेल बताएं, बहुत ज्यादा नहीं, मगर मोटे मोटे वही प्रैक्टिस करके जाएं. और इट डिपेंड्स ऑन देन एंड देयर कि उस सवाल पे आपने कितनी बात करनी है, और अगर ज्यादा लंबी बात है उसको कंसाइज कैसे करना है. तो उनसे भी मैंने आपसे जैसे पहले शायद जिक्र किया था कि यहाँ बताया था कि आप उनसे पूछें कि डू यू वांट ए डिटेल रिप्लाई, और सर इसमें तो वो आपको बता देंगे हाँ जी, गो ऑन एंड टेल मी इन डिटेल. तो फिर आप डिटेल में बताएं. 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, डिपेंड करता है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. ऑल द पार्टिसिपेट, मैंने जो है ना फीडबैक फॉर्म की लिंक शेयर कर दी है. सो फॉर द सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी प्लीज आप उसको फिल कर लें. So it was great, guys. It was a really nice and great experience for me to interact with you, and I'm always open to you people. मेरी ID, email ID आपके पास शेयर करवा लीजिए, मेरा contact अपना शेयर कर लीजिए. Whenever you have any query, inshallah I will try to respond. Or whenever you people, the team incredible leaders require me, inshallah I'm available, and pray for me as well. Thank you sir. Thank you for such an amazing information, such an amazing session. Thank you very much all you guys. Thank you very much. I'm thankful for you people as well. Thank you sir. It's a great session. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much sir. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Thank you.